So welcome again in your notes classes. It's me Puneet Singhal, and today we are going to be again discussing for the drugs related to the thyroid gland again. इससे पहले जो लेक्चर्स थे हम उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड डिसऑर्डर लाइक थायराइडेक्टोमी, सर्जिकल पोर्शन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे. So actually में ये lecture I have dedicated for simply again in pharma related to the hypothyroidism or the hyperthyroidism or the thyroidostom or the preoperative management before or the preoperative management of the thyroidectomy in nursing aspect more of a view if I say. So let's begin. I hope you all are doing great. So first of all, moving on to the pharma part, just let me revise you a simply a physiological portion of thyroid gland. So just imagine this. This is your a thyroid follicle. Let me draw it again with a good view. Okay, so just imagine this is in your thyroid follicle. Okay, and in this thyroid follicle, there is this is your colloid. If you remember, what happens the iodine enters into the thyroid follicle by the an symporter. That symporter is known as sodium iodine symporter that we have discussed already in our physiological parts. Then that iodine is converted into iodine radical, and that iodine radical again converted into MIT. MIT means the monoiodothyronine. MIT plus MIT makes the DIT, yani ki diiodothyronine. So these are MITs and the DITs. These MIT and the DITs goes in coupling reaction and the form the T3, the T4 subsequently. So what are the reactions name and what are the enzymes that causing this all reactions? Okay, first of all, the enzyme here are this is TPO, again the TPO, again the TPO. So there is a single enzyme named the TPO. What is TPO? Thyroid peroxidase enzyme. That thyroid peroxidase enzyme is responsible for the iodine to iodine free radical. That reaction is known as oxidation. Iodine free radical to MIT or the DITs, and that reaction is known as organification in presence of tyrosine amino acid. And again the MIT and the DIT converted into T3 and the T4. MIT plus MIT मिलकर DIT बना लेता है, okay, monoiodothyronine. And the DIT plus MIT मिलकर T3 and the DIT plus DIT मिलकर T4. बड़ा simple सा logic है. And that reaction is known as coupling reaction because they are forming in couples now. So this is your coupling reaction. So there are all over the three reactions: oxidation, organification, and the coupling reactions. And all of the three the reactions are mediated by the TPO. So the first the function that was the iodine is going inside the follicle, which is by the help of the sodium iodine symporter. The sodium will enters into the follicle, and with the iodine will also the enters into the follicle. Iodine then converted into the iodine radical, and then iodine radical converted into MIT and DIT, and the MIT and the DIT forms together the T3 triiodothyronine and the T4 tetraiodothyroxine, which is also known as thyroxine. T4 is also simply known as thyroxine hormone, and then T3 and the T4 enters into this colloid and the bind with a protein which is known as thyroglobulin. So I am writing it here. T3 and the T4 enters into colloid and bind with thyroglobulin. As simple as it. To store them because T3 and T4 just normally यूज़ नहीं हो सकता, नॉर्मली स्टोर नहीं कर सकते, तो स्टोर करने वास्ते आपने अगेन चाहिएगा क्या, थायरोग्लोबिन. तो T3 T4 जो है स्टोर अगर हो रहा है तो वो किस में स्टोर हो रहा है, थायरोग्लोबिन में. तो ये थायरोग्लोबिन मैंने 4 से स्टोर कर. नाउ व्हाट हैपेंस ना कि T3 T4 स्टोर तो हो गया, रिलीज कैसे होगा,
तो रिलीज करने के लिए अगेन मुझे एक रिसेप्टर चाहिएगा. दैट रिसेप्टर, ये मैंने रिसेप्टर बनाया, दिस इज योर TSH रिसेप्टर. व्हाट हैपन्स है कि जो बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस है, दैट इज योर हाइपोथैलेमस. Hypothalamus releases an hormone which is known as TRS, thyrotropic releasing hormone. The thyrotropic releasing hormone, या फिर thyroid releasing hormone, thyrotropic releasing hormone. That thyrotropic releasing hormone act on the anterior part of pituitary, which is known as anterior pituitary. This is your anterior pituitary, and the anterior pituitary effect of TRS releases the TSH hormone, and that TSH hormone act on the TSH receptor. By the activity of TSH receptor, the T3 and the T4 are released by the colloid part. So what happens here ना कि T3 and the T4 क्या होगा ब्लड में रिलीज होगा. ओके, बट इफ आई हैव टू से कि कौन सा ज़्यादा रिलीज होगा तो T4. द 90% पार्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन और द थायराइड सिक्रेशन टू द T4. Only 9% part is the T3 and the 1% is reverse T3. So major participation of the thyroid gland is T4. But the T4 is not functional ना. T4 को T3 में convert करना पड़ेगा. The physiological response is shown by the T3 hormone, not by the T4 hormone. So T4 have to be converted into the T3. T4 have to be converted into the T3. And for that conversion of T4 to T3 in peripheral organs or the peripheral vascular system, we have an enzyme which is known as deiodinase enzyme. That enzyme is known as deiodinase enzyme. And again, there is a simply enzyme which is responsible for the release of T3 of T4 from colloid to blood. Because of T3 T4 यहाँ पे bounded है thyroglobulin से, then I have to be break it down by the enzyme named TEP. I will discuss this later. What is the TEP means? TEP stand for, just you have to be remember now. We can break it down the T3 T4 by the TEP enzyme, and then T3 T4 will release into the blood vessels, and then in blood vessels the T4 will be converted into T3, the external form or the functional form of thyroid hormones. Is that great? Okay, by the help of enzyme which is known as deiodinase enzyme. Great. So now if I have discussed it all, now I can understand the mechanism of synthesis of your thyroxine hormone. If I have to be block this thyroxine hormone production, what can I do? Just simply act on these various part of the system. What you can do, you can just simply block the sodium iodine importer. If you block the sodium iodine importer, the iodine will not enter into the follicle, and then there is no production of thyroid hormones. So that can be used in hyperthyroidism condition, na? But it will take some time because of the production will stop soon, but the stored thyroid hormone is going to do all the functions of metabolism. Because जब थोड़ा बहुत हार्मोन स्टोर रहता है थायराइड में तो उसमें टाइम लगेगा, तो एक्शन डिले आता है. Just what I can do is the sodium iodine importer. I can block that sodium iodine importer. Second thing you can do is you can block these TPOs. जितने भी TPO है आप इन्हें ब्लॉक कर दो. थायराइड peroxidase जो है इन्हें आप ब्लॉक कर दें. If you block these TPOs, the oxidation, the organification, or the coupling reactions, anything won't happen. So the T3 T4 production will stop again. Second thing you can do. So the first thing that I do was sodium iodine importer blocker. The second thing I did, that is your TPO यानी कि thyroxine peroxidase inhibitors. Now what is the third thing that you can do? You can do the TEP block. You can block the TEP. So the thyroglobulin block नहीं होगा, then T3 T4 release नहीं होगा. And the fourth and the last form you can do is you can block the deiodinase or the peripheral conversion of the T4 to T3. Is that it? So these are the some functions that you can do to prevent the production of thyroid hormone. Let's discuss them one by one. Okay. If you are having any trouble in understanding, just go back of that time place and you can again revise that part.
or the here that part. Okay, now I'll provide you the PDF of this in my Telegram channel. Okay, you can find the link in your description box. So now the first, let me discuss your first drug, that is your sodium iodine symphoter blocker. Is that great? Now you will understand easily. तो व्हाट इज द सोडियम आयोडीन सिम्पटर ब्लॉकर? देखो, अब मैं जस्ट इनको बोलने से पहले एक लाइन ये भी बोल देता हूँ कि दीज ड्रग्स आर टॉक्सिक इन नेचर, एंड द टॉक्सिक ड्रग्स अगर है तो नॉट यूज्ड। सिंपल सा बात है कि इनको अब हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यू हैव टू बी जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस ड्रग, नथिंग एल्स। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस ड्रग? थायोसाइनेट, THIOCYNATE, you can use the drug thiocyanate, and the fluburate. That's it, nothing else. Is that great? That's all about this category. Now the second category की तरफ अगर हम मूव करें, which is important again, which is your TPO blocker and the thyroxide peroxidase enzyme blocker. ठीक है? So now you can use the drug is thyroid peroxidase inhibitor. The thyroid peroxidase inhibitor, in short the TPO inhibitor. TPO inhibitor. Again drugs. Is that simple? Okay. Now what the drugs that you can use in this category? Let's discuss them. Okay. Acha, again, a common word that NCLEX books or the Ignatius book used, that is thiomidate. This drug also known as thiomide. वो जब आपको इग्नाटा विशेष की बुक बार बार बोल रही होगी जब भी आप ल्यूगोल आयोडीन देंगे या फिर आयोडीन की कोई भी प्रिपरेशन पेशेंट को देंगे बिफोर सर्जरी और बिफोर एनी प्रोसीजर, यू हैव टू बी जस्ट एडमिनिस्टर द पेशेंट विद द थायोमाइड। मैंने क्या बोला? जस्ट लिसन दैट कि आपने लास्ट क्लासेस के अंदर थायराइडेक्टोमी जब भी किया था तो थायराइडेक्टोमी से पहले हमने ल्यूगोल आयोडीन पेशेंट को दिया था, एंड दैट ल्यूगोल आयोडीन, व्हाट दैट ल्यूगोल आयोडीन डू? SSKI, if you remember. Okay, that Lugol iodine or the SSKI, the shrink the size of the thyroid gland, so the bleedings or the complications will not that occur in that manner. That's the thing. But that is iodine. Iodine 131 used in treatment, the iodine 123 used in the diagnosis of or the thyroid scan of a patient, that usually avoid in pregnancy periods. सो जब भी आप आयोडीन प्रिपरेशन देंगे, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म ऑलरेडी है, आपने आयोडीन प्रिपरेशन दिया तो ये तो और थायराइड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, तो इन दैट केस तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस और आ सकते हैं. सो हाउ कैन आई प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन? बाय द एडमिनिस्ट्रिंग द थायोएमाइड फर्स्ट. व्हाट डिड आई से कि जब भी आप ल्यूगोल आयोडीन दे, व्हाट डिड आई से, हियर मी आउट, जब भी आप क्या करें, ल्यूगोल्स आयोडीन दें, तो ल्यूगोल्स आयोडीन या फिर SSKI देने से पहले हम क्या कर देंगे, पेशेंट में थायोएमाइड दे देंगे. और थायोएमाइड ये वाली जो कैटेगरी आप पढ़ेंगे ना, थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर कैटेगरी, ये वाली ड्रग्स देने से क्या होगा, तो पेशेंट का जो थायराइड फंक्शन जो हाइपर थायराइडिज्म की तरफ ऑलरेडी पेशेंट था, वो यू थायराइड की तरफ आ जाएगा, नॉर्मल थायराइड फंक्शन हो जाएंगे. और नॉर्मल थायराइड फंक्शन हो जाएंगे, देन ड्रग्स देना इज इजी टू यूज. इज दैट ग्रेट? सो व्हाट डिड आई सेड यू टू, कि जब भी आप ल्यूगोल आयोडीन SSKI या फिर सर्जरी से पहले जब भी जा रहे हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाएगा थायोएमाइड. यू हैव टू बी जस्ट रिमेंबर इट, और यू हैव टू जस्ट एडमिनिस्ट्रेट. Okay, now this is your thyroid peroxidase inhibitor category, which is also known as thiamide drugs. Okay, इन थायोएमाइड ड्रग्स के अंदर मोस्टली दो क्लासेज आती है. दो क्लासेज के अंदर देखो, इसको दो क्लासेज में डिवाइड करने के रीजन इनकी बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पे. देखो कैसे, इसमें पहली ड्रग जो है विच इज़ कार्बिमाइड, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. ओके, कार्बिमाजोल, what did I say, carbimazole. Wow. So the carbimazole you can do, and the methimazole, the other drug is methimazole. Okay, if you have to remember any one drug, you just remember the carbimazole. Okay, this is an important part. So the carbimazole is important again. So carbimazole and the methimazole, दोनों की दोनों एक कैटेगरी में रखिए. Why? Because of the T half of the drug is long. Long means the very long. टी हाफ मीन्स ये नहीं कि बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रुकेगी, तो इसीलिए इनकी जो डोज है ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप ओडी डोज में यानी कि सिंगल टाइम डोज देंगे तो ही काम हो जाएगा. टी हाफ ज़्यादा है तो लंबे टाइम तक बॉडी में रुकेगा तो काफ़ी लंबे टाइम तक फंक्शन करता रहेगा, तो डोज इनकी ओडी में लगेगी. टी हाफ इनका लॉन्ग है. ठीक है,
ना व्हाट अबाउट द साइड इफेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. साइड इफेक्ट इज दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है ना, उसको कम कर देगा. इम्यून रिस्पॉन्स में तो इफेक्ट डालते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज द एग्रेनुलोसाइटोसिस. तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा. सो एज ए नर्स व्हाट यू विल डू, यू हैव टू बी पेशेंट, टू एडवाइज द पेशेंट फॉर द अवॉइड क्राउडेड प्लेस. अवॉइड क्राउडेड प्लेस ना, बिकॉज उस क्राउडेड प्लेसेस में वैसे ही इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है, और इस पेशेंट में तो वैसे ही इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा है. तो पेशेंट को आप या तो ऐसे बोल दो कि आप जो है इन्फेक्शन से बचे, या फिर क्राउडेड प्लेस, जो भी चीज़ें जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है उनसे बचाना है, तो इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सकता है. ना द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दैट यू हैव टू बी रिमेंबर इज द टेराटोजेनिसिटी. टेराटोजेनिसिटी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट. व्हाट इज़ द टेराटोजेनिसिटी? इफ़ अगर मैं मदर को कोई ड्रग एडमिनिस्टर करूँगा, और अगर बेबी में वो डेवलपमेंटल अगर कोई अगर एनोमिली अगर कोई कॉज करेगा, दैट इज़ नॉट ए टेराटोजेनिसिटी. इज़ दैट सिंपल. टेराटोजेनिसिटी मोस्टली जो होगी वो ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू का 3 महीना. हम प्रेगनेंसी को बराबर 3 हिस्सों में बांट देते हैं ना, तीन 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 करके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर. मतलब मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिकॉज जब बेबी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, अब ऑर्गन्स बनते टाइम ही अगर आपने कोई टेराटोजेनिक ड्रग दे दिया, अगेन प्रॉब्लम तो कॉज करेगा. सो द टेराटोजेनिसिटी यहाँ पर कॉज हो जाती है, ये बात ध्यान रखें. ओके, टेराटोजेनिसिटी के नाम पर 2 टेराटोजेनिसिटी आप याद रखेंगे जो इसके थ्रू हो सकती है, विच इज फर्स्ट इज कोएनल एट्रेसिया. फर्स्ट इज कोएनल एट्रेसिया, जो बेबी का नोज़ है, नोज़ के पीछे वाला जो पार्ट है वो ओपन नहीं होगा. तो नोज़ आगे से तो खुली होगी लेकिन पीछे से बंद होगी. कैसे टेस्ट करता है? जस्ट एनजी ट्यूब डालेंगे, एनजी ट्यूब डालेंगे, आगे जाएगा ही नहीं. कोएनल एट्रेसिया. ना अनदर थिंग, बेबी जब भी शांत रहेगा नीला पड़ जाएगा, और जैसे ही बेबी रोने लगेगा बेबी विल बी पिंक अगेन. वाई? बिकॉज जब शांत है तो नाक कहाँ से, सांस कहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है? नाक से. बट नाक से सांस आएगा नहीं, नाक तो बंद है आगे से, क्योंकि ममा ने उस टाइम पे उनको हाइपरथायरॉयडिज्म था. मे बी और भी कॉज होते हैं कोएनल एट्रेसिया का, एक सिंगल नहीं होता. बट मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना आपको. सो मदर दैट administer the drug of the carbimazole or the methimazole na, so the baby is having choanal atresia, mother use the drug in her first trimester of pregnancy. This is an again important part. The second trimester or the third trimester will not cause that much impact, because of बेबी का ऑर्गन बन गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन गया. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मैथीमाजोल और द कार्बिमाजोल दिया, देयर इज इन सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कोएनल एट्रेसिया टू द बेबी. तो बेबी विल बी साइनोस्ड और द बेबी विल बी ब्लू. बेबी जो है ब्लू होगा कब? जब बेबी क्राई नहीं कर रहा होगा, शांत होगा, बिकॉज जब नाक से सांस ले रहा हो. लेकिन जैसे ही बेबी जो है मुंह से सांस लेने लगेगा, बिकॉज जब जैसे ही क्राई कर रहा है, तो क्राई करते मुंह से सांस लेगा, मुंह से सांस लेगा तो सांस तो आ जाएगी ना, सांस आ जाएगी तो बेबी अगेन विल बी पिंक. दैट्स इट. ओके, सो द कोएनल एट्रेसिया अगेन फर्स्ट थिंग. ये हम कोएनल एट्रेसिया एंड ऑल ये सब पीडियाट्रिक्स वाले पार्ट के लिए छोड़ रहे हैं अभी के लिए. जस्ट हम इसको आया पार्ट तो जस्ट बताना था, ठीक है. नाउ द अनदर थिंग इज कि टेराटोजेनिसिटी में और भी हो सकता है. देखो, कोएनल एट्रेसिया भी हो सकता है, इसोफेजियल एट्रेसिया भी हो सकता है. ओके, सो द एट्रेसिया वर्ड बार बार मेरे को सामने आ रहा है. तो एट्रेसिया वर्ड का एक कॉमन यूनिक मैं जस्ट आपको बता ही देता हूँ. एट्रेसिया वर्ड मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंट के टाइम पे कोई चीज़ ना बने ना, दैट इज एट्रेसिया. कोई भी चीज़ आगे से बंद हो जाए, बस आप सिंपल से याद रखो. मैंने बोला ईसोफेगस, ईसोफेगस बनी और बन के आगे की तरफ बंद हो गई, पूरी बननी थी नहीं बनी, तो ईसोफेगस ऐसे रहेगी. यहाँ पर ईसोफेगस वाला पार्ट रहेगा, लोअर ईसोफेगस वाला पार्ट रहेगा, तो बीच में से ईसोफेगस बंद है, दैट इज एट्रेसिया. बस कोई चीज़ कहीं से बंद हो गई, एट्रेसिया. कोएनल एट्रेसिया, अब नाम से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, कहीं आपको एनएस की तरफ नहीं जाना. कोएनल एट्रेसिया नोज की तरफ रहना बस. ईसोफेजियल एट्रेसिया नाम से सिंपल है कि ईसोफेगस की तरफ है. तो बट द मोर अगर आपको याद रखना पड़े तो आप जस्ट याद रखेंगे कोएनल एट्रेसिया. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1? T1 मतलब ट्राइमेस्टर 1 है ना, आप इसको पूरा लिख लीजिए. ओके, टेराटोजेनिसिटी में 2 चीज़ें तो ये मैंने आपको बताई. दूसरा, एट्रेसियाज के अलावा स्किन डिफेक्ट भी हो सकते हैं. स्किन डिफेक्ट तो बेबी में क्या होगा कि जो पैची स्किन, यानी काफ़ी जगह जो स्किन नहीं बन पाएगी. इज दैट इट? उसके लिए मैंने टेक्निकल जो वर्ड है आपको मैंने वहीं पर ऑलरेडी बता दिया. दैट इज ऑल अबाउट द कार्बिमाजोल एंड द मेथिमाजोल. तो कार्बिमाजोल एंड द मेथिमाजोल, अगर इनको मैं बोलूँ तो कार्बिमाजोल एंड द मेथिमाजोल द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म. कार्बिमाजोल एंड द मेथिमाजोल द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म. बट द प्रॉब्लम इज कि ये अगर प्रेगनेंसी में दिया तो क्या कर देगा? टेराटोजेनिसिटी कर देगा. तो अगर टेराटोजेनिसिटी कर देगा, इट मीन्स ये प्रेगनेंसी में तो हाइपर थायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं हो सकती. सो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी?
with Graves' disease. What is Graves' disease? Graves' disease is the most common cause of hyperthyroidism, na? Of the Graves' disease or the hyperthyroidism. So now there is another drug which also blocks the TPO again, and that drug is propylthiouracil. What drug is this? Propylthiouracil. Is that great? The second drug, that second category drug is, first is carimazole and the methimazole. I am writing is the first category. The second category is your propylthiouracil. Is that great? Now what about the propylthiouracil? First thing that I write about it, this is the drug of choice in pregnancy with Graves' disease or the hyperthyroidism. Is that great? Now what if they ask about the thyroidostom, the drug of choice in थायरॉयडिस्टम? यू हैव टू बी रिमेंबर दैट पार्ट अगेन. थायरॉयडिस्टम जो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉम्प्लिकेशन, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉम्प्लिकेशन है थायरॉयडिस्टम. ना थायरॉयडिस्टम में आप ओरल टैबलेट तो देने जाएंगे नहीं ना, है ना. यू हैव टू बी जस्ट एडमिनिस्टर द पेशेंट विद द पीटीयू या फिर propylthiouracil. Okay, so the drug of choice in thyroidostom or the complication of hyperthyroidism is PTU, propylthiouracil. There is a two question regarding the PTU. First question is drug of choice in pregnancy because of it teratogenicity cause नहीं कर रहा. ओके नाउ अच्छा, ऐसी अगर बात है तो हम पीटीयू को नॉर्मल पेशेंट में यूज कर लेते हैं ना, तभी क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं हम? क्यों ड्रग ऑफ चॉइस आम आदमी में या फिर ओवरऑल? अगर आपसे देखो सिंपली, अगर वो बंदा इन्हें पूछ रहा है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म, यू हैव टू जस्ट आंसर द कार्बिमाजोल. आप कुछ नहीं सोचेंगे कि आप प्रेगनेंसी और ये वो नहीं सोचना, जस्ट सिंपली आंसर द कार्बिमाजोल. इफ दे आर स्पेशली मेंशनिंग द प्रेगनेंसी इन दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू बी रिमेंबर द नेम ऑफ पीटीयू. बिकॉज कार्बिमाजोल कैन कॉज द टेराटोजेनिसिटी. Carimazole can cause the teratogenicity, na. So if they are asking about the pregnancy drug of choice, then you have to be answer the PTO, propylthiouracil. Also, that there is another question, the drug of choice in thyroidostom, that is again answer is PTU, propylthiouracil. Now the question is, मैंने आपसे जो पूछा है कार्बिमाजोल अगर इतनी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, टेराटोजेनिसिटी कॉज कर रहा है, मतलब पीटीयू को क्यों यूज हम नहीं कर रहे हैं? पीटी को यूज़ कर लेते हैं, पीटी propylthiouracil को ही आप जो है ड्रग ऑफ चॉइस रख लेते, नहीं रख सकते. वाई? बिकॉज ऑफ दैट कैन कॉज द हेपेटोटॉक्सिसिटी. ये लिवर को टॉक्सिसिटी कॉज करेगी. तो इसका साइड इफेक्ट जो है दैट इज हेपेटोटॉक्सिसिटी. द हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर डैमेज हो जाएगा, तो ये तो मैं कतई नहीं चाहूँगा ना. कम से कम उसका ये वाला साइड इफेक्ट तो नहीं था ना. तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, दैट्स वाई द ओवरऑल एक्चुअली में मैं इसको कभी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ नहीं करेंगे. नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस जो है विच इज कार्बिमाजोल. प्रेगनेंसी के केसेज में आप जो है propylthiouracil यूज कर सकते हैं. तो एज ए नर्सिंग आपका क्या इम्प्लीकेशन हो जाएगा? अगर पेशेंट में आपको पता है कि पेशेंट इज ऑन propylthiouracil, जस्ट मॉनिटर द हार्ट फंक्शन, या सॉरी मॉनिटर लिवर फंक्शन. अगर पेशेंट propylthiouracil पे, तो आपको क्या करना चाहिए? लिवर फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए. बिकॉज ऑफ लिवर फंक्शन तो अल्टर हो सकते हैं ना, वो अल्टर हो सकता है बिकॉज ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी टेस्ट. ओके नाउ दैट्स इट. ओके नाउ तो propylthiouracil के बारे में एक आध खास बात है, जैसे कि उसका जो टी हाफ था वो छोटा था, सॉरी ज़्यादा बड़ा था. नाउ द propylthiouracil का जो टी हाफ होता है वो शॉर्ट होता है. शॉर्ट टर्म के लिए दवाइयाँ काम करती है, और टी हाफ अगर शॉर्ट है तो इसकी डोज जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी. इट मीन्स के दिन में 4 बार, विच इज़ QID. तो इसकी डोज कैसी हो जाती है? QID डोज हो जाती है. दिन में 4 बार कम से कम जो है propylthiouracil देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट एक्शन ऑफ द ड्रग. इज दैट ग्रेट? अमेजिंग. नाउ अगर यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके जस्ट आई हैव टू बी चेक सम फंक्शंस हियर. ओके सो एवरीथिंग इज, आई थिंक एवरीथिंग इज functioning great. Again for this studio mode. Okay okay now ओके नाउ ये दोनों ड्रग्स हमने डिस्कस कर ली. दोनों ड्रग्स जो है ब्लॉक कर ली किसको? टीपीओ को. दोनों के मैंने कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट लिखे. पहले का लिखा मैंने द टेराटोजेनिसिटी और ग्रेनुलोसाइटोसिस, एंड दूसरे का मैंने लिखा हेपेटोटॉक्सिक. कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी जो होते हैं वो पूरी की पूरी कैटेगरी के साथ ही आते हैं. कॉमन साइड इफेक्ट का मतलब वो चाहे propylthiouracil के साथ भी आएगा, वो कार्बिमाजोल के साथ भी आएगा. तो कॉमन साइड इफेक्ट आर देन सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे दैट इज मैक्यूलोपैपुलर रेस. मैक्यूलो, the most common is maculopapular
रैश, व्हाट इज मैक्यूलोपैपुलर? मैक्यूलास बनेंगे, पेपुलास बनेंगे और रैश होंगे, बॉडी पे निशान बन जाएंगे, दाने बन जाएंगे, फ्लूइड भी आ जाएगा, मतलब जब मैक्यूल भी है पेप्यूल भी है। अगर इफ यू रिमेंबर द स्टेजेस ऑफ रैसेस देन यू हैव टू यू नो द मैक्यूल, पेप्यूल, vesicles and all. Okay, so the maculopapular rash, this is the most common side effect. Now the arthralgia. What is arthralgia? Arthralgia means the joint pain. Arthra मतलब joint, algia मतलब pain, so the joint pain. ठीक है. Now the another is a granulocytosis. मैं इसको यहाँ भी लिख रहा हूँ क्योंकि जो अगेन इंपॉर्टेंट है granulocytosis. ठीक है. तो अगर पेशेंट को कभी भी फीवर हो या फिर कभी भी सॉर थ्रोट हो तो पेशेंट को बोलेंगे आप तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि एक साइन हो सकता है इन्फेक्शन का, फीवर और सॉर थ्रोट का। और फीवर इन्फेक्शन साइन तो सॉर थ्रोट, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पेशेंट में ग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, WBC का नंबर कम हो रहा है। तो पेशेंट को बोलें ऐसी कोई भी कंडीशन है तुरंत हमें रिपोर्ट करें। ग्रेट. Now the nausea and the vomiting are the sub common feature. You can write it here again. Okay. So that was your second category of the hyperthyroidism, the drug or the anti-hyperthyroid drugs. Is that great? Now we can move on the third category here. So I think there is some lag behind it. Give me a second, please. Okay. Now, so now the third category of drug is, if you remember that part, फिजियोलॉजी पोर्शन, मैंने ये वाला पोर्शन आपसे क्लिक कर दिया, ये वाला एक सेकेंड। ओके, सो ये जो है हम फर्स्ट कैटेगरी की जो ड्रग है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जो है TPO आपसे ब्लॉक करवा दिया, और TPO ब्लॉक करने के बाद में तीसरा जो है हम ब्लॉकर पढ़ेंगे विच इज TEP ब्लॉक। ठीक है, और इस TEP, TEP मीन्स द थायो एंडोपेप्टाइडेज। TEP स्टैंड फॉर थायो एंडोपेप्टाइडेज। तो नाउ द जो ड्रग हम डिस्कस करेंगे विच इज TEP ब्लॉकर। What is TEP? TEP stands for thioendopeptidase inhibitor. So the TEP means the thioendopeptidase inhibitor. The what I'm saying, thioendopeptidase inhibitor is the block the TEP, and then if I'm blocking the TEP, there is no release of T3 T4 by the thyroglobulin or the colloid. So what is thioendopeptidase doing? Okay, in the thioendopeptidase inhibitor there is some drugs which is known as potassium iodide, अब थोड़ा बहुत आपको वापस से याद आने लगा होगा। And the second drug here is lugol iodine. याद आया? Lugol iodine and the SSKI, that SSKI is potassium iodide, and the lugol iodine and the lugol iodine. These are all are the thioendopeptidase inhibitors. Okay, I'm sorry. So this is potassium iodide and the lugol iodine. Okay, दोनों करते क्या हैं? अगर मैं कंबाइन इफेक्ट बताऊं इनका, तो बेसिकली T3 T4 को कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब इनका रिलीज कम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर आपसे बोलूं, सो दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग्स, दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग्स। बिकॉज जब बाकी सारी ड्रग्स जो ना काम करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, बट सबसे जल्दी अगर किसी का एक्शन आता है तो बेसिस thioendopeptidase inhibitor which is lugol iodine, the potassium iodides. ग्रेट. हम इनको यूज कहाँ कर रहे थे? अगर आपको याद हो तो हमने जो थायराइड सर्जरीज वगैरह जब परफॉर्म करी थी, थायराइडेक्टॉमी, तो उससे पहले इसको दिया था टू श्रिंक द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैं अगेन वापस से नोट नहीं करूँगा, बट हम पहले नोट कर चुके हैं। पोटेशियम आयोडाइड और ल्यूगोल आयोडीन हमने यूज किया था SSKI इन फॉर्म ऑफ SSKI ल्यूगोल आयोडीन बिफोर द थायराइडेक्टॉमी. इज दैट ग्रेट? नाउ what is the side effect? साइड इफेक्ट अगर होगा कि अगर इसकी क्या हो जाए, हाइपर एक्टिविटी।
साइड इफ़ेक्ट कब होगा? जब इनकी हाइपर एक्टिविटी हो, और अगर इनकी हाइपर एक्टिविटी होगी तो इनमें रैश होगा. द सेकेंड थिंग विच इज लिम्फ एडिनोपैथी. बॉडी पे ढेर सारे रैशेज हो सकते हैं और लिम्फ नोड स्वेल कर सकते हैं, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी. दैट इज नॉन एज लिम्फ एडिनोपैथीज. ओके. अनदर साइड इफेक्ट्स आर द डिस्क्यूशिया. व्हाट इज डिस्क्यूशिया? नया वर्ड है आपके लिए. डिस्क्यूशिया इज द मेटेलिक टेस्ट इन माउथ. मेटेलिक टेस्ट इन माउथ. ओके. तो जस्ट सिंपली सीधा सीधा ना लेके एग्जामिनर अगर नए वर्ड इसमें उन्हें लिखें तो देन यू हैव टू बी रिकॉग्नाइज इट ना. So this is dysgeusia. What is dysgeusia? The metallic taste in mouth is known as dysgeusia. Okay. Now another some of the headache and all, these are some common features which is not so important. Just you have to remember the dysgeusia, rash, and the lymphadenopathies are the side effect of leukotriene. How you can prevent these all side effect? तो जब भी आप ल्यूगोल आयोडीन दे रहे हैं, एसएसके दे रहे हैं, उससे पहले एडमिनिस्टर कर दें क्या? कार्बिमाजोल मतलब प्रोपिलथायोयूरेसिल. ये है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था. ओके. ना तो चौथी कैटेगरी जो आपको याद हो तो हमने बोला था कि पेरिफेरल कन्वर्जन को हम प्रिवेंट करेंगे. और पेरिफेरल कन्वर्जन की जो हमारे पास एंजाइम था विच डी आयोनिडेज एंजाइम, तो हम क्या करेंगे? डी आयोनिडेज इनहिबिटर. तो नेक्स्ट कैटेगरी डी आयोनिडेज इनहिबिटर. दिस इज योर नेक्स्ट कैटेगरी. व्हाट इज डी आयोनिडेज इनहिबिटर? तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा था तो इसका T4 से T3 का, इस पेरिफेरल कन्वर्जन को प्रिवेंट कर देते हैं. T3 बनेगा ही नहीं तो एक्शन कैसे करेगा? दैट सिंपल इट इज. ओके. सो व्हाट आर द ड्रग्स दैट्स आर द deionidase inhibitors? फर्स्ट इज प्रोपिल थायोयूरेसिल. सर प्रोपिल थायोयूरेसिल तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था जब हमने TPO इनहिबिटर्स पढ़े थे, बट ये ड्रग्स deionidase इनहिबिट भी करती है. So the first drug is propylthiouracil, then propranolol. प्रोपिनोलोल तो सर बीटा ब्लॉकर है, अगेन करती है सर. ठीक है. देन सम स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड कैन आल्सो ब्लॉक द फंक्शंस ऑफ deionidase and the amiodarone. तो अब आपको याद आया जब हमने एमियोडारोन पढ़ा था किसमें? कार्डियक एक्टिविटीज़ में, कार्डियक डिसरिथमियाज में. तो कार्डियक डिसरिथमिया में जब हम एमियोडारोन पढ़ रहे थे तो एमियोडारोन कैन कॉजेज दी हाइपोथायरॉयडिज्म. वाई? बिकॉज ऑफ वो deionidase को ब्लॉक करता है. deionidase ब्लॉक होगा तो T3 कन्वर्जन नहीं होगा, और T3 कन्वर्जन नहीं होगा तो कंडीशन कौन सी डेवलप होगी? हाइपोथायरॉयडिज्म. दैट्स वाई द एमियोडारोन का साइड इफेक्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. So some drugs that I have written here is propylthiouracil, propranolol, steroid, and the amiodarone that can cause the hyperthyroidism. That can cause the action against the hyperthyroidism by the blocking the peripheral conversion of T4 to T3 by the blocking the enzyme named the deionidase. Is that great? That's it. तो ये चारों तरह की कैटेगरी की ड्रग्स थी जो हमने क्या कर दी, सिंपली ख़त्म कर दी. ये सारी की सारी ड्रग्स आप यूज कर रहे होते हैं इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपको पता होना चाहिए, हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन भी पढ़ा था. हम रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज कर रहे होते हैं. तो ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियो एक्टिव आयोडीन था, कौन सा रेडियो एक्टिव आयोडीन था? तो आयोडीन 131. यहीं पर अगर मुझे आप डायग्नोसिस के लिए बताओगे तो डायग्नोसिस के लिए क्या था? आयोडीन 123. डायग्नोसिस के लिए जो था वो कितना था? आयोडीन 123 आइसोटोप था उसका. लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का आइसोटोप था दैट वाज आयोडीन 131. इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया. दैट आयोडीन 131 प्रोड्यूसेस कौन सा रेज? तो दिस प्रोड्यूसेस द बीटा रेज एंड दीज बीटा रेज डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड. और अगर थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन से
रिलीफ मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हें थायराइड कैंसर में, थायराइडेक्टॉमी अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद में है ना, हाइपरथायराइडिज्म अगर ऑल्टर पेशेंट्स वगैरह में हैं तो इन सब केसेज के अंदर आप इसे यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट आर द साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट वही होगा कि अगर आपने थायराइड ग्लैंड को ख़त्म ही कर दिया तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग जो है थायराइड सप्लीमेंटेशन पे रहना पड़ेगा। और क्या इसे आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना, प्रेगनेंसी रूल आउट करनी पड़ती है पहले। सो द प्रेगनेंसी इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी में जो है आयोडीन 131 में नहीं देंगे। अदरवाइज ये क्या करता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे से मदर से बच्चे में चला जाएगा, सॉरी। और अगर बच्चे में गया तो टेराटोजेनिसिटी कॉज कर देगा। दैट्स वाई प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं किसको? आयोडीन 131 को। कैसे यूज करते हैं आयोडीन 131 को? तो सिंपली इसकी एक ट्रीटमेंट, एक थेरेपी देनी होती है। 2-3 थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है कुछ पेशेंट के अंदर। सिंपली आता है पेशेंट, उसके जो है मुंह के थ्रू आयोडीन 131 जो है मिला दिया जाता है। ठीक है, दैट एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड। ओके, दैट्स इट। नाउ द ये ड्रग्स अगर सारी खत्म होगी तो मैं लास्ट टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करूंगा, टॉपिक खत्म कर दूंगा। द ड्रग्स इन हाइपोथायराइडिज्म। ड्रग्स इन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? ये सारी ड्रग्स जो मैंने बताई थी वो कहीं ना कहीं T3 T4 को कम कर रहे थे, तो इसलिए इन जितनी भी ड्रग्स हैं इनको मैं कहाँ यूज़ करूँगा? हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म के लिए ड्रग्स कौन सी है मेरे पास? तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमने 2 ही ड्रग्स पढ़ी थी, आपको याद हो तो। कौन सी? लेवोथायरोक्सिन, ठीक है। एंड द अनदर ड्रग हियर इज लेवोथायरोक्सिन के अलावा, दैट इज योर लियोथायरोनिन। लेवोथायरोक्सिन एंड द लियोथायरोनिन। ओके, लेवोथायरोक्सिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ करी जाती है। आपको क्या याद रखना है? जो याद रखने वाली बात जो मैंने पहले नहीं बताई, कि जो T4 से बनी होती है, T4 से बनी होती है विच इज लेवोथायरोक्सिन, और जो T3 से बनी होती है विच इज T3 का साल्ट कौन है? तो विच इज लियोथायरोनिन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर T4 से बनी है तो T4 तो लॉन्ग एक्टिंग होता है, इट मीन जब लेवोथायरोक्सिन होगा वो भी लॉन्ग एक्टिंग होगा। और T3 शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो दैट्स वाई लियोथायरोनिन भी कैसी होगी? सॉफ्ट एक्टिंग होगी। ठीक है, एंड द लेवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इनको आपको मैंने बोला था कि ओरल फॉर्म से देना होता है। जो है आप इन्हें बिफोर जो है ब्रेकफास्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इनको आप आईवी रूट से देंगे तो आईवी रूट से ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी इन केस ऑफ मिक्स एडिमा कॉमा। मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन चीज़ों को बिकॉज हम इन्हें पहले डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट ग्रेट? वॉट आर द साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट हम भी पहले डिस्कस कर चुके थे। द साइड इफेक्ट कैन बी द ए फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन ये कॉज कर सकते हैं बिकॉज अभी हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे ही आप इनको ड्रग्स को देंगे ना, ये हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ने पे तो हार्ट तो फड़फड़ा सकता है ना, और हार्ट अगर फड़फड़ाएगा तो फड़फड़ाने वाली कंडीशन नोन इज फिब्रिलेशन। एट्रियम फड़फड़ा रहा है तो एट्रियल फिब्रिलेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सो द साइड इफेक्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा, मैनेजमेंट क्या एट्रियल फिब्रिलेशन का? तो एट्रियल फिब्रिलेशन का मैनेजमेंट सिंपली थोड़ा सा ना, एक स्क्रीन में और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लैग आ रहा है, आई थिंक थोड़ा सा ये फिक्स हो जाएगा बाद में, अभी के लिए आप थोड़ा सा समझें। ओके, सो द एट्रियल फिब्रिलेशन का सिंपली मीनिंग क्या है कि हार्ट जो है, हार्ट का एट्रियम, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी तो आप कह सकते हैं इसे, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल के ऊपर सुपर वाली साइड में हो रहा है। अगर आपको मैंने क्या बोला था कि बेसिकली जो डिस्रिथमियाज होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वेंट्रिकल के नीचे नीचे हो या वेंट्रिकल के ऊपर ऊपर। वेंट्रिकल का मतलब एबी सेप्टम, तो एबी सेप्टम के अगर नीचे हो रहा है तो विच इज वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियाज और एरिथमियाज। अगर वेंट्रिकल के ऊपर हो रहा था तो सुप्रा वेंट्रिकुलर डिस्रिथमिया और एरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर जो डिस्रिथमिया फिर एरिथमिया अगर होंगे तो सुप्रा वेंट्रिकल का नाम क्या हो जाएगा? पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। उसी टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो फर्स्ट है, दैट इज योर एफिब। एफिब मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन। देर इज अनदर नेम विच इज एट्रियल फ्लटर। फ्लटर में हार्ट रेट 250 350 से ऊपर हो जाता है फिब्रिलेशन। सो द एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है बिकॉज मैंने बोला था ड्रग्स की एक्टिविटी को बढ़ाएगी और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो एफिब हो सकता है। गॉट द आइडिया? सो द फर्स्ट इज एफिब। तो कैसे एफिब, और खासकर इनके चांसेज एफिब होने के, कार्डियक चेस्ट पेन होने के चांसेज होते हैं ओल्ड एज में। तो हमको याद रखना है कि ओल्ड एज में इसको लोअर डोज से शुरू करना होता है, देन हायर डोज की हम तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो दूसरे साइड इफेक्ट मैं लिख देता हूँ एफिब के बाद में। दूसरा क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नाउ द ट्रेमर्स, क्योंकि हर एक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं इनसे। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो पेशेंट को इसी वजह से हम जो है विटामिन D3 या फिर जो कैल्शियम है वो एडवाइस करते हैं, बिकॉज जब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन का कमज़ोर हो जाना, तो उसको प्रिवेंट करने वास्ते जो है हम विटामिन D3 और ये सारे दे सकते हैं। ठीक है,
एंड द फोर्थ थिंग इज सम अगेन हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है तो palpitations हो सकते हैं, द impounding sensation in chest, so the palpitations can occur. Okay, then the fourth fifth thing is heat intolerance because of hyperthyroidism हो गया, तो hyperthyroidism वाले फीचर हीट इंटॉलरेंस जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड द हार्ट की एक्टिविटी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इंसोम्निया, पेशेंट को नींद आना मुश्किल हो जाएगा, तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके, दैट्स इट. अगेन दैट वाज यूर ऑल अबाउट द थायराइड ड्रग्स. ये एक्चुअली मैंने थायराइड ड्रग्स का सारा डिस्कशन आपसे कर दिया. इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर तो कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है. मैंने जितनी हाइपोथायराइडिज्म की ड्रग्स थी वो डिस्कस कर ली, जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पर जस्ट मैंने अगेन उनको जो है एक बार समअप किया है इन चीज़ों को. दैट्स इट. अगेन ओके, गुड टू गो. बाकी अदरवाइज इसके अंदर कुछ खास बाकी चीज़ें बची हैं. ग्रेट. नाउ थैंक यू फॉर योर पेशेंस. दैट्स इट. इसी तरह से तैयारी करते रहें. आई थिंक गुड टू गो रहेगा. आप लाइक उड़ जाएंगे, उड़ान भर लेंगे. इज़ दैट ग्रेट. चलो बाकी काफ़ी है. और हम डिस्कस करेंगे आगे इन चीज़ें नेक्स्ट क्लास के अंदर. थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीन में और मेरी वॉइस में जो है थोड़ा सा लैग आ रहा था, बट आप आई थिंक इसको कोप कर लेंगे. आपको मेरी बातें सुननी है और बाकी आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो आप लिख ही सकते हैं. और इसका जो PDF है जो मैंने अभी ये जो बनाया है स्लाइड्स के ऊपर, इनका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा. ओके, बाकी आप वेबसाइट के ऊपर भी तो चेक कर ही सकते हैं ना. वेबसाइट के ऊपर भी इसको शायद आई थिंक अटैच करवा दूंगा. वेबसाइट यू कैन द सर्च इज सिंपली NOTSH. देखो कैपिटल में कभी सर्च ना करें, डोमेन कभी कैपिटल होता नहीं है. नॉट्स डॉट इन, जस्ट गो एंड द सर्च एंड द लॉग इन, यू कैन साइन अप and the log in the account and you can take some test there. Okay, it's for you, it's all free for now at least. So Hindustani hai sir hum. Okay, so that's it. Bye. Okay, we'll see you in next classes. Okay, peace out. Good.